Hello students, welcome back. Today we will study again the same lecture that we had done yesterday, last home method, unit number 2 by Srigun Srivastava. Okay, yesterday in lecture number 1 we had seen that there was an old man who was doing a sculpting, a work of sculptor का काम कर रहा था. स्कल्पटर कौन होता है? जो स्टैच्यूज बनाते हैं उसे हम स्कल्पटर कहते हैं. और उनका जो सन था, व्हाट वाज हिज नेम? हिज नेम वाज गोपाल. ही लेफ्ट द होम एंड देयर वाज वन सर्वेंट whose name was Salim. He was with him and Gopal had left him, told him that this work doesn't pay of doing a work of making sculptures or doing a work of a sculptor. It doesn't pay much to us. So he left and he went to Agra. We had seen yesterday this much. And there was a servant whose name was Salim. He was an orphan. Orphan means अनाथ था वो. और हमने और क्या देखा था? He had came to Master Ji 5 years ago. Drenched to the skin, dressed in tatters. Drenched का मीनिंग मैंने आपको बताया था, completely wet. Dressed in tatters, फटे हुए कपड़े पहने हुए थे. He begged for shelter during a furious monsoon storm. और वो बैक कर रहा था कि मुझे अब ये इतनी मानसून स्टॉर्म जो फ्यूरियस है, बहुत जो तेजी से बारिश हो रही है, उसमें मुझे आप शेल्टर दीजिए. ओल्ड मैन न्यू दैट सलीम टू वुड लिव हिम अगेन वन डे. लास्ट हमने यहीं तक किया था कि ओल्ड मैन जानते थे कि सलीम भी एक ऑर्फन है, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ आया था, तो वो भी हमें एक दिन छोड़ के चला जाएगा, जैसे कि गोपाल. वी आर ऑन पेज नंबर 14. सो लेट्स स्टार्ट अगेन on right hand side, last third paragraph. Okay, start. He sighted and looked into a serious eyes of the boy, clouded with sadness, a sadness the old man could not understand. He sighted and looked. उसने ध्यान से देखा. Into a serious eyes of the eyes of a boy. Boy के जो सलीम था उसकी आंखों में देखा. Clouded with sadness, उसकी आंखों में भी दुख था. A sadness that old man could not understand. ऐसा दुख था जो old man बिल्कुल understand नहीं कर पाया. He shook his head. My strength is waning. Meaning दिया हुआ है my strength is waning. I am becoming weaker. मैं weak होता जा रहा हूँ. I can't work with a chisel like I used to. Carving takes too long, much too long. मैं बिल्कुल काम नहीं कर सकता ये चिसल से, और कार्विंग बहुत समय लगाता है. Then he straightened up and said that with determination, I will have to finish this work and surely I will. फिर उसने डिटरमाइन किया, वो स्ट्रेटन हुआ, थोड़ा से अच्छे से स्ट्रेट हुए, और उन्होंने डिटरमिनेशन से फ्रेशली उन्होंने डिटरमाइन करते हुए कहा कि आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क. मैं ये काम कंप्लीट करूंगा और मैं ये करके रहूंगा. Yes, you will. The boy repeated, offering his master the glass of tea. हाँ, आप करोगे. The boy repeated. Boy ने भी वो पीछे से कहा. Boy कौन है यहाँ पे? सलीम. सलीम ने भी कहा कि yes, you will. आप ये काम करोगे. मास्टर जी, the glass of tea. टी का ग्लास देते हुए. Drink please. It will do you good. Then he added. सलीम ने ऐड करते हुए कहा कि ड्रिंक, पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा. Then he added, I have to go to the market for an hour or two. मुझे मार्केट जाना है 1 या 2 घंटे के लिए. But I will be back in time to prepare dinner. लेकिन मैं जल्दी ही लौटूंगा डिनर बनाने से टाइम पर. The old man nodded and thought, he has been going to the market too often lately. ओल्ड मैन ने nodded means हाथ मुंह हिलाते हुए कहा कि ओके यू कैन गो. और फिर वो सोचने भी लगे. कौन सोचने लगा? ओल्ड मैन सोचने लगे. क्या? कि सलीम जो है वो लेट टाइम तक मार्केट जाता रहता है. आई होप
ही हैजंट फॉलन इनटू अ बैड कंपनी। मैं सोच रहा हूँ कि वो कोई गलत कंपनी में तो नहीं आ गया। ऐसा कौन सोचता है? ऐसा मास्टर जी सोच रहे हैं। He shot a questioning glance at the boy who turned and left the room. He shot a questioning glance और उन्होंने suspicious face से हाँ कहते हुए बॉय को, और उन्होंने वापस मतलब ये जो सलीम था वो टर्न होते हुए चला गया। The old man sighed and picked up a chisel and a hammer. और उन्होंने लंबी सी एक सांस ली ओल्ड मैन ने और फिर से अपना काम शुरू किया चिसल और हैमर लेकर। द कूल मैटर ऑफ द टूल्स फिल्ड हिम विथ हैप्पीनेस एंड कॉन्फिडेंस। और जो ये जो मेटल थे वो थोड़े से ठंडे हो चुके थे और उससे वो काम अच्छे से कर पा रहे थे, उन्हें हैप्पीनेस फीलिंग आ रही थी और वो कॉन्फिडेंट हो रहे थे। कौन कॉन्फिडेंट हो रहा था? मास्टर जी। He loved his work and didn't want to change it for any other in the world. और वो कोई भी काम के लिए अपना काम ये छोड़ना नहीं चाहते थे, वो अपना काम बहुत अच्छे से करना चाहते थे। Days and weeks went by. It was months since Gopal had left. दिन बीत गए, हफ्ते बीत गए, मंथ हो गया था, अभी भी गोपाल वापस नहीं आया था। The old man worked tirelessly. जो ओल्ड मैन थे वो पूरी तरीके से काम कर रहे थे। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट नाइट ही वर्क ऑन द स्कल्पचर। सुबह से लेकर शाम तक, नाइट तक वो पूरा दिन स्कल्पचर पे काम कर रहे थे। इट वॉज ऑल देयर इन द स्टोन, द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट शोल्डर्स ऑफ कृष्णा, हिज कर्व्ड हिप्स। He could see the pointed figures holding the flute delicately to the lips, his shrine face eternally beautiful. अब तक उन्होंने कितना काम किया था स्टोन पे? द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेट शोल्डर्स ऑफ कृष्णा, कृष्णा के सिर्फ वो शोल्डर्स बना पाए थे और उनकी कर्व्ड हिप्स बना पाए थे और उन्हें पॉइंटेड फिंगर्स दिख रही थी। जो कृष्णा जी की फ्लूट, वो उनके फिंगर्स में फ्लूट थी, वो डेलिकेटली उनके लिप्स पे लगी हुई थी। हिज श्राइन फेस इटरनली ब्यूटीफुल। और उनका जो फेस था वो इटरनली ब्यूटीफुल था। इटरनली मीन्स जैसे हमेशा की लगे, जैसे कृष्णा भगवान की जो मूर्ति होती है वो ब्यूटीफुल दिखती है, सेम वैसा था। सियन मीन्स काम, पीस लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था वो जो उनका स्टेच्यू बन रहा था। द ओल्ड मैन कुड सी इट इन द स्टोन। ओल्ड मैन ये सारी चीजें स्टोन में देख पा रहे थे। ही कुड फील इट, ही ओनली हैड टू सेट इट फ्री विथ इट द चिसल। वो पूरा फील कर पा रहे थे, वो काम कर रहे थे और ये सिर्फ उनको सिंपल ही बनाना था, सिंपल चिसल से। टू सेट इट विथ चिसल मीन्स टू कार्व इट आउट, सिर्फ उनको ये कार्व करना था। He didn't feel hunger, he didn't feel thirst, he was driven by a desire to finish the sculpture in time. He didn't feel hunger, उन्हें बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी, उन्हें बिल्कुल प्यास भी नहीं लग रही थी। He was driven by a desire, सिर्फ उनके माइंड में एक डिजायर था कि मुझे ये काम कंप्लीट करना है टाइम पे, मुझे ये स्कल्पचर, ये जो स्टेच्यू है कृष्ण जी की, वो मुझे कंप्लीट करनी है। It was his biggest piece, his best, it would also be his last. ये सबसे बड़ा पीस था उनका और सबसे बेस्ट पीस था और शायद ये सबसे लास्ट पीस भी उनका होने वाला था। On and on he worked, his chisel striking the stone again and again. On and on he worked, वो काम करते ही जा रहे थे चिसल से। Striking the stone, स्टोन पे वो चिसल मार रहे थे again and again और उनका काम होता जा रहा था। But then came the day when the old man felt his strength ebb. Felt his strength ebb means he felt weak. और दिन भर दिन में जब वो काम कर रहे थे डे बाय डे, तब उन्हें एक बार ऐसा लगा कि अब वो वीक होते जा रहे हैं। And his hands tremble under the impact of hammer. जब उनके हाथ में हैमर होता तो उनके हैंड्स ट्रिम्बल कर रहे थे, शेक कर रहे थे। His shoulder began to ache. His arms felt heavy and his eyes grew tired. उनके जो शोल्डर्स थे वो अब पेन हो रहे थे, उनके आर्म्स जो थे वो अब हैवी हो चुके थे और उनकी आईज टायर्ड होती जा रही थी। Then his vision blurred and he could not see the shape of Krishna etched in the stone. अब उनकी विजन जो थी, देखने का जो तरीका था, his vision blurred, उन्हें क्लियरली वो कृष्ण जी की मूर्ति अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। He could not see the shape of Krishna etched in the stone. अब उनको कृष्ण जी की मूर्ति भी अच्छे से दिखाई नहीं दे रही थी। Overcome with fear, he sank to his knees and prayed,
ओवरकम विथ फियर, अब उन्हें डर लगने लगा। और जब हम डरते हैं तब हम कैसे घुटनों के बल पे अपना फेस छुपा देते हैं, वैसे ही उन्होंने सैंक टू द नी एंड प्रे, और प्रे करने लगे। मास्टर जी सलीम से, यू हैवंट टच्ड योर फूड अगेन, प्लीज हैव सम राइस एंड वेजिटेबल्स, यू ओनली हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। और इतनी देर में कौन आ जाता है? मास्टर जी सलीम से, यू हैवंट टच्ड योर फूड अगेन। और इतने में सलीम मास्टर जी से कहता है कि आपने अपना खाना भी टच नहीं किया है, प्लीज हैव सम राइस एंड वेजिटेबल, कुछ राइस और वेजिटेबल ले लो। यू ओनली हैड ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट, सिर्फ आपने ब्रेकफास्ट में ग्लास मिल्क का लिया है। एंड हैव अ कर्ड, यू लाइक कर्ड, और आप कर्ड भी ले लो, दही भी ले लो, मुझे पता है कि आपको कर्ड दही पसंद है। The old man looked up. He whispered, I don't think I will be able to finish it. If Gopal was here, it would be different. अब ओल्ड मैन फिर से वीक होते हुए कह रहे हैं, उदास होते हुए कह रहे हैं कि I don't think I will be able to finish it. मुझे नहीं लगता कि मैं फिनिश कर पाऊंगा। If Gopal was here, अगर गोपाल यहाँ होता तो बात कुछ अलग थी। He nodded absent-mindedly to himself and continued. He wasn't the best craftsman. अब उन्होंने अपने आप को ही नोट किया। किसने अपने आप को नोट किया? मास्टर जी ने। मास्टर जी ने एब्सेंट माइंडेडली अपने आप को नोटेट करते हुए, हिलाते हुए, और अपने आप से ही वो और भी आगे कुछ और भी बता रहे हैं। किसे बता रहे हैं? सलीम। सलीम कौन है? एक और पेन, ठीक है। He wasn't the best craftsman. वो अच्छा क्राफ्टमैन नहीं था, बट he was good and strong. लेकिन वो काम में अच्छा था, स्ट्रॉन्ग था। He chipped off the stone. Chipped off का मीनिंग होता है कट करना। वो स्टोन को अच्छे से कट कर सकता था, लेयर बाय लेयर, as if it were a clay. वो ऐसे कट करता था जैसे कि वो क्ले कट कर रहा है, इस तरह से स्टोन को वो कट करता था। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? मास्टर जी किसके बारे में बता रहे हैं? गोपाल के बारे में। किससे बता रहे हैं? सलीम को बता रहे हैं। He hadn't yet learned to carve the finer details, but in a year or two he would have learned surely. उसने अच्छे से अभी तक कार्विंग करना नहीं सीखा था, लेकिन 1 या 2 साल में वो कर सकता था, वो सीख सकता था, वो सीख जाता। He felt silent. अब मास्टर जी साइलेंट हो गए। It was the features and the hands that gave him trouble. ये उसके फीचर्स थे, उसके हैंड्स थे जिसे ट्रबल हो रहा था। There was something missing in his figure. उनके उसके जो फिगर्स थे उसमें कुछ मिसिंग था। That something which can't be taught. कुछ ऐसी चीज थी उसमें जो मिसिंग था, जो सिखाई नहीं जाती थी। Because it comes from somewhere deep inside you. सलीम whispered. अब सलीम ने कहा, क्यों कोई सिखा नहीं सकता था? क्योंकि वो डीप इनसाइड, वो अपने हार्ट से, हमारे मन से आना चाहिए था, वही उसमें वो प्रॉब्लम थी। फ्रॉम द डीप इनसाइड हियर। अब उसे फिंगर पॉइंट करते हुए कहा कि कुछ यहाँ से आना चाहिए था। एंड ही पॉइंटेड टू हिज हार्ट। वो अपने हार्ट को पॉइंट करते हुए कह रहा था। कौन कह रहा है ये लाइन्स? ये लाइन्स सलीम कह रहा है कि बिकॉज इट कम्स फ्रॉम समवेयर डीप इनसाइड यू। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके अंदर से आनी चाहिए, आपका लगन होना चाहिए काम करने का, और वो कहाँ से है? हार्ट से। द ओल्ड मैन लुक्ड एट द बॉय सरप्राइज्ड। अब ओल्ड मैन सरप्राइजली वो बॉय को देख रहे हैं। वो बॉय कौन है? सलीम। He saw him blush and turn his face away. Blush means शर्म के मारे, शो शाइनेस, कुछ उनको शेम फील हो रहा था, और उन्होंने अपना फेस टर्न कर लिया। किसने अपना फेस टर्न कर लिया? मास्टर जी ने। यू आर राइट सलीम, यू आर राइट। एंड देन ही एडेड विथ सडन बिटरनेस। और कुछ कड़वाहट से मास्टर जी ने कुछ और भी कहा। पहले तो उन्होंने कहा कि तुम सही हो सलीम, और कुछ कड़वाहट से उन्होंने कहा, एंड इफ यू डोंट have it here, he tempted his chest, then you better go to Agra and mass produce ashtray for the tourists from the abroad. Then इतना कहते वो स्टॉप हो गए, और उन्होंने बिटरनेस, कुछ कड़वाहट से कहा कि अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं है तो तुम क्या करो, तुम आगरा चले जाओ, तुम बेटर होगे, तुम वही चीप प्रोडक्ट्स बनाओ, एस्ट्रेज बनाओ, कैंडल स्टैंड्स बनाओ,
किसके लिए? वो टूरिस्ट के लिए। द ओल्ड मैन कफ्ड पेनफुली, इतना बोलते बोलते उन्हें कफ हुआ, उन्हें खांसी आने लगी। एंड रीच्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, और वो पानी पीने चले गए। ईट मास्टर जी, ईट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। और अभी सलीम कह रहा है कि मास्टर जी आप खा लो, सब ठीक हो जाएगा। आफ्टर ही हैड ईटन द ओल्ड मैन वंस अगेन टुक अप हिज हैमर एंड चिसल, जब उन्होंने खाना खा लिया था फिर से उन्होंने अपना हैमर और चिसल ले लिया। ही वर्क टिल लेट इन द नाइट, और वो काफी लेट नाइट तक काम कर रहे थे। ही प्रेड फॉर हेल्प एंड स्ट्रेंथ, उन्होंने प्रे किया गॉड से कि मुझे हेल्प करो, मुझे हिम्मत दो। एंड देन ही प्रेड फॉर हिज सन, और उन्होंने अपने बेटे के लिए भी प्रे किया। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग द चिसल फेल फ्रॉम हिज हैंड, और जब वो अर्ली मॉर्निंग तक, वो पूरी नाइट जब काम कर रहे थे, तब वो चिसल उनके हैंड से गिर गई। चिसल फेल फ्रॉम हिज हैंड एंड द हैमर ड्रॉप टू द ग्राउंड, और जो हैमर था उनके हैंड में वो भी ग्राउंड पे गिर गया इन द अर्ली मॉर्निंग। हिज ओल्ड बॉडी सैग्ड falling forward limply, अब उनकी जो बॉडी थी वो सैग्ड हो गई, सैग्ड यानी सैंक, फेल डाउन, वो नीचे गिर गई और वो नीचे गिर के टायर्ड हो गए। His forehead struck Krishna's flute, और उनके जो forehead था, उनका जो सर था, किसका सर था? मास्टर जी का, वो कृष्णा के फ्लूट पर आया। And slide down the statue to rest on the pedestal. Pedestal क्या होता है? जिसपे स्टैचू को हम स्टैंड करते हैं, बनाते हैं, उसे pedestal कहा जाता है, जिसपे स्टैचू रखी जाती है। तो उनका सर वहां तक आके गिर गया। Hey Ram, he muttered and sank into a comfortable darkness, और उन्होंने लास्ट वर्ड्स क्या कहा? हे राम, और वो इतना कहते सैंक हो गए, सो गए। When he opened his eyes, और जब उन्होंने अपनी आईज जब ओपन की, he found himself lying on a cot in his bedroom, और जब उन्होंने अपनी आईज ओपन की तब उन्होंने अपने आप को कहाँ देखा? एक कॉट पे, और उनके बेडरूम में थे। कवर्ड बाय लाइट कॉटन ब्लैंकेट, और उन्होंने क्या पहन के रखा था? एक लाइट कॉटन ब्लैंकेट पहन के रखा था। फ्रॉम द वर्कशॉप द चिपिंग साउंड ऑफ अ चिसल ब्रीज्ड टू हिज ईयर, फ्रॉम द वर्कशॉप से एक चिपिंग की साउंड आ रही थी, कोई चिसल और हैमर चला रहा था, उनकी आवाज में, उनके कानों में ऐसे सब सुनाई दिया। ही लिसन्ड, हैड हिज ईयर डिसेव्ड हिम, हैड हिज ईयर्स, क्या उनके कानों में मिसलीड हुआ, कुछ सुनाई गलत दिया उनसे, वो ऐसा सोच रहे थे। नो, ही कुडंट हियर इट अगेन, फिर से उन्होंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। द स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑफ द हैमर ऑन द टॉप ऑफ द चिसल, फिर से वही ब्लो आने लगी, फिर से आवाज आने लगी चिसल की। गोपाल, ही वॉज बैक, गोपाल हैड रिटर्न, अब मास्टर जी सोच रहे हैं कि गोपाल आ गए हैं। ही वुड हेल्प हिम, देन दे वुड फिनिश द स्टैचू, अब मैं और गोपाल दोनों साथ में मिलकर स्टैचू की फिनिश कर लेंगे। ही स्टम्बल्ड to his feet, crossed the small room and reached the door. He stumbled यानी अपना बैलेंस खोते हुए वो कहाँ पहुंच गए? फिर से जहाँ वही रूम में पहुंच गए जहाँ पे वो वर्क स्टैचू का हो रहा था। Gopal, he was about to shout when the words froze on his lips. No, he wanted to cry out, stop, the work. Gopal, he was about to shout, वो चिल्लाने ही वाला था गोपाल करके, लेकिन उनके लिप्स स्टॉप हो गए। he wanted to cry out, यहाँ पे cry out का मीनिंग है चिल्लाना, उन्हें चिल्ला के बोलना था stop the work, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं बोला। but he could not move, लेकिन वो आगे मूव नहीं कर पाए। shock had immobilized him, shock had immobilized का मीनिंग भी दिया हुआ। he was so shocked that he could not move, वो इतने शॉक्ड हो चुके थे कि वो आगे मूव नहीं कर पाए। ऐसा उन्होंने क्या देखा होगा? He stood staring at the back of the young stone carver working on the face of the statue. He stood staring, वो देखते ही रह गए, स्टेयर करते ही रह गए कि ये कौन है यंग स्टोन कार्वर, कौन है ये पर्सन जो स्क्रीन जो फेस पे वर्क कर रहा है स्टेचू के। On the eyebrows arching over a pair of fine eyes, eyebrows पे काम कर रहा है on a pair. It wasn't his son sitting cross-legged before the biggest statue he had ever carved. वो उनका बेटा नहीं था। He was
ही वॉजंट हिज सन, उनका बेटा नहीं था जो क्रॉस लेग करके बिगेस्ट स्टैचू के सामने बैठा हुआ था. इट वॉज सलीम, हिज सर्वेंट. कौन था वो सलीम था जो सर्वेंट था. द ओल्ड मैन वॉज स्टन, और ओल्ड मैन उसे देखते ही रह गए. द फर्स्ट वेव ऑफ शॉक, फियर एंड एंगर पास्ड. और पहले तो वो शॉक हो गए, उन्हें डर लगने लगा, वो गुस्सा होने लगे कि सलीम कैसे काम कर सकता है. हे राम, द ओल्ड मैन विस्पर्ड. अगेन ओल्ड मैन बोलते हैं हे राम, हे राम. एंड टॉटर्ड ओवर द बॉय, टॉटर्ड अनस्टेडी वे. टॉटर्ड ओवर मीन्स अनस्टेडी, वो स्लोली गए वो बॉय के पास. Dropping his hand on his shoulder, he said softly, "Salim." मास्टर जी ने अपना उनके शोल्डर्स पे, सलीम के शोल्डर पे हाथ रखते हुए उसे बुलाया, सलीम. The startled boy turned and looked up at his master. और वो जो बॉय था, जो सलीम था, वो अपने शॉक होते वो मास्टर जी को देख रहे हैं. He rose to his feet clumsily यानी carelessly. वो खड़े हुए उनके फीट के ऊपर, उनके फीट के यहाँ पे, और उन्हें केयरलेसली वो खड़े हुए. कौन खड़ा हुआ? सलीम. द हैमर एंड द चिसल स्टिल इन हिज हैंड. और सलीम के हाथ में अभी भी हैमर और चिसल है. सलीम. द ओल्ड मैन सर्च फॉर वर्ड्स. अब ओल्ड मैन वर्ड्स ढूंढ रहे हैं. जब उन्होंने सलीम वर्ड यूज किया कि मैं ऐसे अब क्या बोलूं, आई ओनली वॉन्टेड टू हेल्प. अब वो रुक रुक के बोलते हैं मैं सिर्फ हेल्प करना. ऐसे कौन बोल रहा है? सलीम बोल रहा है. वो वर्ड सुन रहा था कि मैं अभी ये मास्टर जी से क्या कहूँ. विस्पर्ड द बॉय, आई विल लर्न इफ यू टीच मी मास्टर जी. आई हैव प्रैक्टिस्ड सीक्रेटली फॉर ऑलमोस्ट 2 years इन अ क्वेरी. और सलीम कह रहा है कि मैं सीखना चाहता हूँ, अगर आप मुझे सिखाएंगे मास्टर जी. मैं पिछले 2 सालों से क्वेरी में वर्क कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ. क्वेरी का मीनिंग दिया हुआ है अ प्लेस वेयर स्टोन्स आर कट, जहाँ पे स्टोन्स को कट किया जाता है. मैं छुप छुप के वहाँ पे काम सीख रहा हूँ. आई एम अ मुस्लिम, आई नो आई शुड नॉट कार्व द इमेज ऑफ गॉड. मैं जानता हूँ कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे इमेज, गॉड की इमेज को कार्विंग नहीं करनी चाहिए. बट इजंट दिस डिफरेंट मास्टर जी? लेकिन ये अलग चीज नहीं है मास्टर जी. आई एम कार्विंग अ स्कल्पचर. मैं एक स्कल्पचर को कार्व कर रहा हूँ. आरंट आई? क्या मैं नहीं कर सकता? ये तो कोई और कैसी भी स्कल्पचर हो सकती है. अ ब्यूटीफुल स्कल्पचर दैट हैज डिफरेंट मीनिंग. ये एक ऐसी स्कल्पचर है जिसके अलग अलग मीनिंग है. फॉर डिफरेंट पीपल, अलग पीपल अलग तरीके से सोचते हैं. इजंट इट सो मास्टर जी? क्या ये सही बात नहीं है मास्टर जी? प्लीज टेल मी. For many years, I wanted to become a sculptor. Yes, yet I found for the feeling. Please tell me. For many years, पिछले बहुत सालों से मैं ये काम सीखना चाहता हूँ. I wanted to become a sculptor. मुझे भी sculptor बनना है. Did not give it in urge. मैंने लेकिन कभी भी बताया नहीं. But it proved too strong. लेकिन ये मेरे लिए बहुत strong है. I know there is nothing in this world. मैं जानता हूँ कि इस वर्ल्ड में और कुछ भी नहीं है. I would like to do more. There is nothing in life I could do better. मैं जानता हूँ कि मेरी लाइफ में और भी कोई ऐसा काम नहीं है कि मैं और अच्छे से कर सकूँ, लेकिन मैं यही काम करना चाहता हूँ. Will you please teach me, मास्टर जी? क्या आप मुझे सिखाएंगे? The old man pulled the boy's head. और ओल्ड मैन ने बॉय के हेड को पुल करते हुए कहा, अगेंस्ट हिज शोल्डर एंड विस्पर्ड. और उन्होंने फिर से वही लाइन दोहराई, देयर इज नथिंग आई कैन टीच यू. मैं कुछ नहीं सिखा सकता. माई सन, गो अहेड. तुम काम करते रहो. यू हैव इट इन योर हैंड्स. तुम्हारे हाथों में ही है. क्या है उनके हाथों में? हैमर और चिसल. और हार्ट से अंदर से फीलिंग है कि तुम्हें ये काम करना है. एंड इन योर हार्ट, और तुम्हारे हार्ट में है. आई नो यू विल बी वन ऑफ द कंट्रीज फाइनेस्ट स्टोन मैसन. मैं जानता हूँ कि एक दिन तुम सबसे कंट्री के सबसे बड़े अच्छे से स्टोन मैसन बनोगे. सो हियर वी कंप्लीट अवर चैप्टर स्टूडेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर. इट इज बाय श्री गुण श्रीवास्तव. MCQs and blanks will be signed in PDF. Till that, thank you. Revise it well.